In this event, we are celebrating the diversity, the uniqueness of every individual. Well, we believe that through this event, through this competition of 2 days, the BASU is in the mission of empowering the minds of our youth through literature and through art. Well, tomorrow we will have our cultural competition. To the guests, I would like to inform that today we will have literary event. So for this competition, more than 15 to 20 schools have registered so far. This is a huge accomplishment. This is the second season, and for this competition today, we will have poem recitation, both English and Hindi, and also we have this morning we have conducted cursive writing competition, drawing and painting competition, and essay competition. In the afternoon section, we are going to have extempore speech, both English and Galo also, and at the same time, we will have allocation and quiz competition in this program. So I believe all these schools, all the students are ready for the program. आप सब लोग prepared होके आया है? All are ready? So students, how's the Josh? Josh high है कि low है? ऐसा high नहीं होता है. High करेगा तो Josh नहीं लग रहा है. Tell me, how's the Josh? Once again, how's the Josh? Louder, how's the Josh? जोश ऐसा होना है, हाई है तो एकदम हाई वॉइस में करना है. Okay, so we are going to begin our competition in a short while. Before that, we have some formal proceeding. We would like to proceed with that. So first and foremost, to set the tone for this event, I would like to invite Sri Mogam Basar, Vice President, Basar Area Students Union, to formally welcome the gathering. Mogam Basar, can we have you on the stage? And after this, I request the girls from Government Higher Secondary School to please get ready for your performance. Iloga Gunga Basar Area Student Union का second inter-school literary and cultural meet होको आलत जिन्हे मोके नगर मोके हिनाम मोके आतो engineer Karmi Ridam senior manager NHPC of India oke mengzat lo ane moke moga kena moga atau engineer buku basar executive engineer power department government of Arunachal Pradesh oke munuk zat lo ane ajen gadan oke hiloga munga literary event tingin rigla mogo judge ko gun parlitla nam munga Judge Wan Kokadu, Moka Sar Jungam Duba, Assistant Professor, Department of Education, Government Model College Basar, Oka Lieutenant Colonial Mito Duba, Assistant Professor, Department of History, Government Model College Basar, Oka जितना भी यहाँ में हमारा बसार सर्कल और सागो सर्कल से जो स्कूल पार्टिसिपेट करने के आया है वो
जो स्टूडेंट्स का टीचर्स लोग जो टीचर्स यहाँ में आए हैं, आप सभी को भी हम बासु के तरफ से धन्यवाद देता हूँ।
who would like to felicitate? Yes, everyone who would like to felicitate first. I take the honor of requesting our chief guest of this program to please हमारे तरफ से एक छोटा सा बेद कबूल करे. To do the honor, I would like to request Deacon Riba, President Basu to please do the honor. So सबसे पहले तो we would like to request Engineer Carmen Ram sir, Group Senior Manager GSM NHPC Government of India to kindly receive token of love, we will say token of appreciation from the side of Basar Area Student Union. Chaliye everyone, please give a huge round of applause for our chief guest of this program, Engineer Carmen Ram, Group Senior Manager NHPC Government of India. एक बार जोरदार तालियों से फिर से उनका सम्मानित करें, उनका स्वागत करें. Thank you so much sir. बहुत बहुत धन्यवाद. It is an honor having you here sir. Keep on clapping everyone. This is a tango, Galo tango. Once again, thank you very much, sir, for your valuable presence. It's indeed a great honor and privilege for all of us. Aldodo. So moving ahead now, we would like to acknowledge the presence of our guest of honor of this program, Engineer Boku Basar, Executive Engineer, Department of Power, Basar, La Parada District. So can we have a huge round of applause for Engineer Boku Basar sir? चलिए एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मानित करें, स्वागत करें सर. Thank you very much sir. Your presence today, I believe, have aided weightage to this event. It's an honor for all of us, especially for the students, to see you all, to witness. Aldo, thank you very much, sir. Thank you very much. And for this entire quiz competition, we have respected judges who are going to judge who are going to witness the program and who are going to decide the winner or the winning results. So now we would like to felicitate our judges for this event. So first, I would like to request Lieutenant Colonel Nito Riba, Assistant Professor, Assistant Professor, Department of History, Government Model College, Basar, to please receive small token of love, small token of appreciation from the side of Basar Area Student Union, sir. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए. We are forever grateful. आभारी हैं हम. बहुत बहुत धन्यवाद. And also we have with us judge number 2, Jungam Basar, Sri Jungam Basar, Assistant Professor, Department of Education, Model College Basar. So can we have a huge round of applause? Also, sorry, Jungam Riba. I request sir to please receive a small token of love. Everyone please join me in welcoming and acknowledging his presence, Sri Jungam Riba, Assistant Professor, Department of Education, Government Model College, Basar. Aldo, thank you very much, sir, for your valuable time. It's an honor for your presence and for the service that you are giving to our society. And yes, we would also like to felicitate the guests who are present over the stage. We would like to invite Igo Badak sir, Principal DB School, to please come forward and please
small token of appreciation of the side of basket. His principal, GV School, Go Babaji. And we have with us Nilmani Gaur, sir, Director GV. Gaur sir, हमारे GV School के Director, please receive, please. Yes, we would also like to acknowledge the presence of Pakjun Doke sir. Pakjun Doke sir. To acknowledge the presence of Sri Gopal Landur, sir, so please kindly receive Sri Gopal Landur, sir. And yes, we are also joined by our principal VMS, ma'am. Kindly, अभी आगे आ जाइए. We acknowledge your presence here. Thank you very much, ma'am, for your time. Thank you so much. And we are also joined by Sri Bilud Maharaji, sir. Kindly आगे आ जाइए, sir. Bilud Maharaj, sir. Thank you so much, sir, for your valuable presence. And we would also like to acknowledge Sri Gopal Balaji, sir. आप भी kindly आगे आ जाइए. We would like to acknowledge your presence here. It's an honor for all of us that you all have graced us. Apart from them, we have been joined by many other teachers from different schools. Thank you so much once again to all of you. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोग सभी लोग स्टेज में आ जाइए. And also I request now Sri Mogam Basar, Vice President Basu, to join the gum in felicitating our teachers. Thank you so much, Dagam sir. I would like to request Mogam Basar to please continue with the felicitation. चलिए सभी टीचर्स, thank you very much. I believe as a competition it provides an opportunity for interaction. Not only competition, हमें ऐसा इवेंट में देखने को मिलता है, जानने को मिलता है, इंटरेक्ट करने को मिलता है दूसरे जो स्कूल के स्टूडेंट से. इवन द टीचर्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एक दूसरे को जानने के लिए. So this is indeed a very good initiative. We believe. Once again सभी टीचर को बहुत बहुत धन्यवाद. Bring the honor is our Mogam Basar, BP Basu. चलिए स्टूडेंट्स क्लैप कर दो आप लोग अपना टीचर्स के लिए, जोर से क्लैप कर दो ना. They have been working really hard. आप लोगों के लिए दिन रात करते हैं और आपको पढ़ाते हैं और आपको इस काबिल बनाते हैं. तो when we are receiving something, आपका फर्ज बनता है जोर से क्लैप करना. जब तक आपका हाथ दर्द नहीं होगा तब तक क्लैप करते रहना है. Very good. Keep on clapping ना, क्लैप करते रह देना है. Very good.
And also I request Daggam Ghali, Games and Sports Secretary, to please come along and join Mogam Basar in felicitating our guest, Sri Daggam Ghali. Thank you so much, Mogam. I would like to request Daggam Ghali, Games and Sports Secretary, to continue with the felicitation. Very good. Keep on clapping, clap जारी रखना चाहिए हम लोग तालियों की तरह जो कंटिन्यू होना चाहिए. Okay? And now I also request Sri Govind Yendo, Organizing Secretary from Federal Speaker, to please join Daggom Ghali in felicitating our guest. Thank you so much, Daggom. I request Govind Yendo, Organizing Secretary from Federal Speaker, Basar Area Student Union, to felicitate our teachers. Good morning to all. आज के इस सेकेंड इंटर स्कूल लिटरेरी एंड कल्चरल मीट 2005 में जो मुख्य अतिथि के में आया है इंजीनियर कार्मेरीराम जी, ग्रुप सीनियर मैनेजर हैं NHPC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और अपना लेपारादा डिस्ट्रिक्ट का सीनियर ऑफिसर है, और उसके साथ में आज का ये जो प्रोग्राम को आयोजित कर रहा है बासर एरिया स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट आओ गिकेन देवाजी, उसके साथ साथ दाग्गम बामजी, ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन कम जनरल सेक्रेटरी ऑफ बासर एरिया स्टूडेंट यूनियन, और उसके साथ साथ आपका लेंदो जी जो फेडरल स्पीकर है बासर एरिया स्टूडेंट का, और आओ मोहम्मद बासर जी वाइस प्रेसिडेंट बासर एरिया स्टूडेंट, और उसके साथ साथ जितना भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है बासर एरिया स्टूडेंट का। और आज का आप सबका लिटरेरी कंपटीशन या जो भी कल्चरल प्रोग्राम को जज करने के लिए हमारा गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज बासर से आया है। आओ मित्रों, और आओ, अरे वाह। और उसके साथ साथ में जितना भी स्कूल से प्रिंसिपल, हेडमास्टर, टीचर्स जो आज के इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं, और जो इनवाइटीज हैं डाइस में जो बेटा है, और जो प्रोग्राम को आने वाला समय में भी हम सबको देखने के लिए, या हम सबका जो जो प्रोग्राम हुआ है उसको टेलीकास्ट जो मीडिया पार्टनर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तनी टाइम्स है, आपको भी अपना लोकल होने के नाते भी बहुत हम लोग पत्र महसूस करता है।
और उसके साथ साथ में आज का इस प्रोग्राम के लिए जो आप सबको इन लेटर पार्ट बाद में एड्स का बारे में जो आप सबको बताएगा, जो आप सबको जानकारी देगा, रिसोर्स पर्सन जो मेडिकल से आए हुए हैं। और आज का इस प्रोग्राम को के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण, इसके आप सब के बिना ये प्रोग्राम नहीं होगा, जो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स जितना भी अलग अलग स्कूल से आए हैं, नंबर्स ऑफ टीचर्स आने वाला को देख के दिल को बहुत छू गया, बहुत अच्छा लगा। और स्टूडेंट्स लोग को भी, और कहीं देखा है पेरेंट्स लोग भी आया हुआ है बच्चा के साथ, वो भी एक इंकरेजिंग मोड है, वो भी बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स भी ऐसे प्रोग्राम में शरीक होना है बच्चा के साथ। आज का यह विषय जो है, हम स्पेशली बासर एरिया स्टूडेंट यूनियन का जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, ये सोच लेके आया। इस बार सेकेंड एडिशन है। ये सोच, इतना ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग स्टूडेंट यूनियन है, बहुत है। हमारा लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत है, लेकिन ये एक एरिया का स्टूडेंट को आगे कैसे लेके जाना है, स्टूडेंट का पढ़ाई का बाहर, पढ़ाई सिर्फ नहीं है, इंटरमीडिएट जो लिटरेचर का बारे में, कल्चरल का बारे में, अपना ट्रेडिशन का बारे में आप सबको मौका, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होता है, वो मौका देने के लिए ये आयोजित किया। उसके लिए बासर एरिया स्टूडेंट यूनियन का जितना भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, ये जो इनोवेटिव सोच लेके आया, उसके लिए आगे भी ऐसा लेके जाना है। उन सब के लिए चलिए हम सब एक बार क्लैपिंग कर देता है। जितना भी हम लोग इधर आके आप लोग को, स्टूडेंट लोग को समझाने से भी, आपके जो टीचर समझाता है, जो पढ़ाता है, जो गाइडेंस देता है, उससे अच्छा तो हम लोग नहीं दे पाएगा, हम लोग नहीं बन पाएगा। फिर भी जो चीज आपको इस प्रोग्राम के द्वारा हम लोग आप सबको कुछ वर्ड ऑफ एडवाइस, आपका पढ़ाई का साथ साथ आपको आगे में क्या करना चाहिए, आपका स्टूडेंट का अभी देखा जाए तो इसमें अपर प्राइमरी से ही आया है जैसे लगता है, सेकेंडरी लेवल का, हायर सेकेंडरी लेवल का नहीं है। तो कहने जाने से आप सब अभी असली समय में है, जो पीक स्टेज में है, आप सबका भविष्य को बनाने के लिए, आपका सोच को आगे लेके जाने के लिए आप अभी पीक स्टेज में है। उसी बात को आपका टीचर लोग स्कूल में भी पढ़ाता है, उसी बात को आपका भलाई के लिए आपका पेरेंट्स, रिलेटिव आपको घर में भी दोहराता है। आप कैसे करके पढ़ाई में अच्छा करना है, पढ़ाई क्यों अच्छा होना है, और सब क्यों पढ़ाई करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है पढ़ाई करके ऑफिसर बनना है, पढ़ाई करके डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट, ये जो भी बिजनेसमैन पढ़ाई करके वो बनना है, वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि पढ़ाई से आपको क्या सीख मिल रहा है, पढ़ाई करके सोसाइटी में आप कैसे अच्छा आदमी बन सकता है, ये पढ़ाई का महत्व है, ये पढ़ाई का आपका इंपॉर्टेंस है। आप जितना पढ़ाई को ध्यान से करेगा, आपका दिलो दिमाग में जो सोसाइटी का अंदर रहता है, आपको मालूम होगा ये चीज खराब है, ये चीज अच्छा है। तो ये सीख पढ़ाई में ही मिलेगा, आपका टीचर का द्वारा ही मिलेगा और आपका पेरेंट्स का द्वारा ही मिलेगा। ये चीज को आप सब ध्यान देना है स्टूडेंट। हम सब स्टूडेंट थे, आपका 1 से लेके भी बोलो, कहीं से भी, हम सब स्टूडेंट हैं। तो आज हम लोग आप सबको
आपका टीचर के साथ में हम ये बोल पा रहा है, हम इधर आ पा रहा है, ये गुरुजी लोग का, टीचर्स लोग का बदौलत हम इधर आ पा रहा है। मेरा पेरेंट्स लोग का, मेरा जो रिलेटिव से हमको जो इनकरेज किया, हमको जो रास्ता दिखाया, उसका बदौलत हम आज इधर आ पाया। तो उसी तरह आप लोगों का भी लक्ष्य होना पड़ेगा, आप लोगों का भी स्टूडेंट का एक एम्बिशन होना पड़ेगा। आप आगे क्या बनना है। पहले जमाने में आपका, हम लोग का जमाने में भी वो सब नहीं होता था, कोई गाइडेंस नहीं देता था हम क्या बनना है आगे जाके, हम क्या करना है आगे जाके। लेकिन उसमें हम लोग का जो अपना पेरेंट्स को देखे, अपना माँ पिताजी कितना दुख तकलीफ हो रहा है, उसको देख के हम लोग का मन में ये रहता, अरे इतना वो दुख तकलीफ हो रहा है तो हम भी पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं करेगा, सारे लोग का बात अच्छा से नहीं सुनेगा, कल को उससे दुख तकलीफ ज्यादा हमारा होने वाला है। वो सोच लेके हम लोग ने मेहनत किया। इसलिए जो मेहनत किया आगे निकलेगा ही निकलेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप ऑफिसर बन गया या आप कौन सा पद में है, आप कौन सा लीडर में बन गया, वो जरूरी नहीं है, लेकिन वो अच्छा आदमी आप बन के निकलेगा, ये आप लोग दिल में रखना है। और दूसरी बात, इतना सब्जेक्ट है आपको कंफ्यूज कराता है, लेकिन टीचर आपको, आपका गुरुजी अच्छा दिशा दिखाएगा, आपका कैपेसिटी को देखेगा, आपका क्वालिटी को। ये बच्चा, मेरा स्टूडेंट कहाँ में अच्छा हो रहा है, कहाँ में आगे जा सकता है, आपका पेरेंट्स उसको बताएगा, आपका माँ पिताजी, आपका रिलेटिव उसको गाइडेंस देगा, उसको देखेगा। आजकल आपका सिर्फ पेरेंट्स नहीं है, आपका रिलेटिव भी आपके लिए इतना सोचता है, आपका सोसाइटी का जो एनजीओस होता है वो भी आपके लिए इतना सोचता है। तो आजकल ये बहाना नहीं होगा, हम अच्छा पढ़ाई लिखाई करने से भी क्या है, हमको कल को पैसा नहीं होगा तो हम आगे नहीं पढ़ सकते हैं। पहले ये होता था, लेकिन अभी का जमाने में ये नहीं होता है। जो अच्छा पढ़ाई करेगा, जो अच्छा खेलकूद करेगा, वो आगे जाने के लिए गवर्नमेंट भी स्पॉन्सर करता है। अपना पेरेंट्स में थोड़ा सा फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट होने से भी अपना रिलेटिव भी देखता है उसको, और उसके साथ साथ में अपना सोसाइटी भी देखता है, कैसे करके उसको आगे लेके जाना है। ये हम लोग आज का जितना भी स्टूडेंट आया है, आप सब अपर प्राइमरी से है ऐसा हमको लग रहा है, तो इसीलिए अभी आप लोग का सही ढंग से पढ़ाई में रुचि होना पड़ेगा, और सही ढंग से आप जो खेलकूद में अच्छा है, आपको टीचर, आपका जितना भी टीचर होगा आपको आइडेंटिफाई करेगा, ये बच्चा उसमें परफेक्ट होगा। कल्चरल एक्टिविटीज क्यों हमारा साथ में जुड़ा हुआ है, इसमें आपका ट्रेडिशन का भी आता है। और आजकल आपको खुद देख रहे हैं, आप लोग का जनरेशन का कितना हमारा अरुणाचल से अभी बॉलीवुड में जा रहा है, कितना हमारा बासर से भी कितना अच्छा डांसर निकल रहा है, कितना अच्छा सिंगर्स निकल रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये उस इंडिविजुअल लोग का अपना एम एंड ऑब्जेक्ट जो आगे जाने के लिए सोच रखा है, इसलिए वो कर पाया। लेकिन आप सब में पाव रखेगा, ना इधर ना उधर होने का बहुत चांस होता है। तो इसीलिए अभी से आपको आने वाला समय के लिए आपको फोकस करना है। जितना भी अभी सुविधा, आपको फैसिलिटीज आपको आज का दिन में मिल रहा है स्टूडेंट लोग को, उतना ही फैसिलिटीज है जो आपका माइंड को डाइवर्ट करेगा। आज का सबसे ज्यादा डाइवर्ट क्या चीज कर रहा है? आपका मोबाइल। आप कहीं भी जाइए, माँ पिताजी, आपका रिलेटिव आपको कभी भी गलत सोच लेके मोबाइल नहीं देता है। आपको अच्छा के लिए ट्यूशन जाने से आपको कहाँ में जा रहा है, कहाँ में आ रहा है, उसको बात करने के लिए, अपडेट लेने के लिए। आपका पढ़ाई में अच्छा चीज भी है, आप देख सकता है, उधर से जानकारी ले सकता है। लेकिन आप ये मान के चलिए, कभी भी आपका यूट्यूब बोलिए, फेसबुक बोलिए, टिकटॉक बोलिए, जो भी व्हाट्सएप पे बोलिए, जो भी
सोशल मीडिया से होके भी आप उससे इतना जानकारी नहीं ले पाएगा जो आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है। तो इसीलिए टीचर जो पढ़ाता है उसको ध्यान से सुनना है। ये नहीं करना है कि मेरा मोबाइल है, हम बाद में यूट्यूब से देखते हैं। जो स्टूडेंट अपना से जानकारी रखता है और यूट्यूब देखने से भी उसको सही आंसर या सही उसका मीनिंग को मालूम होगा, लेकिन जो आधा आधी जानकारी रखता है उसमें जाके किसी का बात में भी बोला को देखेगा तो आप आधा नॉलेज मिलेगा। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। जो चीज को सही ढंग से नहीं जानता है वो चीज आपके लिए हानिकारक होता है। तो इसी तरह मोबाइल का भी यूज, जो उपयोग आप करता है उसका भी आप जेन्युइनली करना है। टीचर पढ़ा रहा होगा, आप क्लास में बैठ रहा होगा, मोबाइल को साइलेंट रखिए, स्विच ऑफ कीजिए। अब घर में भी आजकल का बच्चा, हम सबका ये ऐसा हैबिट हो गया कि खाना खा रहा है साइड में मोबाइल देख रहा है। सबका ऐसा हो रहा है। इसका वजह से हम लोग का ब्रेन जो है, बच्चा से ही ब्रेन जो है, आप बहुत देखता होगा, कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है। और हम लोग कितना भी देखने को मिलता है, किताब निकाल कर पढ़ रहा है लेकिन ब्लूटूथ इधर हेडफोन लगा के कर रहा है। ये सब तो जीनस बुक में आएगा। आउट ऑफ लाख या 100 में से 0.0001% का दिमाग ऐसा हो सकता है कि वो पढ़ाई करते समय गाना भी सुन सकता है या उसका दिमाग में आएगा। लेकिन मैक्सिमम जो है 99.9% जो है कभी ऐसा नहीं होगा। माँ पिताजी को कभी धोखा में मत रखिए। माँ पिताजी आपका भविष्य के लिए सोचता है। टीचर्स को धोखा में मत रखिए, वो आपका भविष्य के लिए सोचता है। हम लोग आज पिक्चर देखने से, जो जितना भी सीनियर इधर बैठा है, जितना भी आपका गुरुजी बैठा है, वो जो पिक्चर देखेगा उसका भी गुरुजी था। उन्होंने कान पकड़ के उठक बैठक कराया, तब जाके वो आज आप लोग का गुरुजी बन रहा है। तो आपको भी ये ध्यान देना है। पढ़ाई का साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, स्पेशली बासर एरिया स्टूडेंट यूनियन ने जो आयोजित किया, लेके आया, इसको आप सब भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। क्यों हिस्सा लेना है? आप अभी थोड़ा पहले एक नृत्य देखा, एक डांस देखा, उसमें जो वेशभूषा है, गले पहना है, आपका कंपीला पहना है, तादोकंगलू, वो सब को भी अभी से बच्चा को आप सब उसका मीनिंग को, क्यों उसको पहनना जरूरी है, वो क्या चीज है, ये गलों में क्या रिप्रेजेंट करता है, उसको माँ पिताजी समझना है, समझा देना है। जो पहनाते समय जो गले पहनता है उसको आप माँ पिताजी अच्छा से समझा के आने देना है। ऐसा नहीं है दूसरा पहनता है उसको पहना रहे, वो नहीं, समझा के बच्चा को अभी से शुरुआत करो, तब तो आगे जाके वो बच्चा अपना ट्रेडिशन का बारे में भी जानेगा। अपना तहुतदक जो बीच से जो तहुतदक है, इजागा गणमतु लोग mampu gadu, mampu nyirmeno hen gadu, luchum nuker, luchum nyirmeno hen no, di alien gadu, luchum ngu galolo, nyini da monoma, mampu galolo nyini da momado, moanyi ko kombe ko nyini, dongna dinchi nama, ayu tadam ko, ये सब जो है पेरेंट्स शुरू से उसको बच्चा को भी सिखाना है। ये एक तो हो गया। और आज का जैसे दिन मीट जो है, हम पहले भी बोला है, जो दिमाग लेके, जो सोच लेके बासर एरिया स्टूडेंट लेके आया है, ऐसे सोच को जब तक हम लोग या हम खुद भी, हम एज ए पर्सनल जो बासर का एक सीनियर सिटीजन होने के नाते और बासर एरिया का एक ऑफिसर होने का नाते हमेशा सहयोग देगा, फिजिकली भी सहयोग देगा, फाइनेंशियली भी कुछ मदद करने का होगा, हमेशा सहयोग देगा। ये कार्यक्रम किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये बच्चा का भविष्य के लिए, आने वाला समय के लिए ये इंपॉर्टेंट है।
ये बहुत जरूरी है आज का दिन में। आपको ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन शुरू करेगा, पैराग्राफ राइटिंग शुरू करेगा, आपका इधर एक्सटेम्पोररी स्पीच होगा, पोएम रिसाइटेशन होगा। ये आपको इसका महत्व को, इम्पोर्टेंट को अभी जो यूपीएस जो अपर प्राइमरी स्कूल का उतना आपको नहीं समझेगा, लेकिन आपका टीचर आपको जरूर समझेगा इसका इम्पोर्टेंट आने वाला समय में क्या होने वाला, आपका क्लास 10 में क्या होगा, क्लास 12 में क्या होगा। जब क्लास 12 पास होगा, आप कॉलेज में जाएगा तो और क्या आपको मदद मिलेगा उससे, ये आपको आने वाला समय में मालूम होगा। हमको सीनियर लोग बासर एरिया स्टूडेंट यूनियन ने ऐसे ऐसा कराया था, हम उसमें ये सीखा था, ये आपको आने वाला समय में बहुत काम आने वाला। तो इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, जितना भी स्टूडेंट आया है, जितना भी पेरेंट्स आया है, मेरा एक ये रिक्वेस्ट होगा, अनुरोध होगा कि आप जितना भी घर में समझा सकता है, पेरेंटिंग जो बोलता है, आपका दायित्व बनता है। जितना टीचर स्कूल में पढ़ाता है, जितना ट्यूशन टीचर पढ़ाता है, उतना आपका दायित्व बनता है पेरेंट का, बच्चा के लिए माहौल बना के रख देना, बच्चा का पढ़ाई का टाइमिंग को मेंटेन कर देना, बच्चा का बैठ के पढ़ाई करने के लिए उसका सुविधा को, उसका फैसिलिटीज को अरेंज कर देना, मैनेजमेंट कर देना, और पेरेंट्स का ऊपर होता है। एक रूम में बच्चा पढ़ रहा है, दूसरा रूम में पेरेंट पार्टी कर रहा है, तो ये आशा नहीं करना है। तो बच्चा ऐसे हो के भी मेरा बच्चा आगे आएगा, पेरेंट्स लोग जो पेरेंट्स आया है उसको ध्यान में देना है। अब जितना अच्छा स्कूल में लगाने से भी, जब बच्चा हॉस्टल से वापस आके घर में आता है, तो आप उसको उसी माहौल में रखेगा जो आप बच्चा हॉस्टल बैठने से में घर में आप दोस्तों के साथ में जैसे आप माहौल मेंटेन कर रहा था, उसी तरह बच्चा आने का बाद भी आप मेंटेन करके रखेगा। बच्चा का दिमाग एक महीना का अंदर 45 डेज वेकेशन का अंदर बच्चा का दिमाग जो है डाइवर्ट हो जाएगा पढ़ाई से। ये पेरेंट्स लोग, आने वाला लोग ध्यान दीजिएगा जो भी आया है, क्योंकि हम सब जितना है पेरेंट्स है, बच्चा का भलाई के लिए सोचना है। आपका एक दिन का, आपका एक रात का, 2 रात का दोस्त को बुला के पार्टी करके बच्चा का भविष्य को, आने वाला भविष्य को आप बचाने के लिए सोचना है, बर्बाद करने के लिए नहीं सोचना है। तो और ये उम्मीद करता हूं आने वाला समय में भी बासर एरिया स्टूडेंट यूनियन जैसा दूसरा जितना भी इधर स्टूडेंट यूनियन है या ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा कार्यक्रम लेके आए जो मेरा बच्चा, जो मेरा स्टूडेंट लोग भविष्य में याद रख सके कि वो जब सफलता के ऊंचाई पे जाएगा, पीछे देखने में याद आएगा, हम जब 8 स्टैंडर्ड में था, हम जब 7 स्टैंडर्ड में था, हमको वो पलना ऑर्गेनाइजेशन में हमको ये सिखाया था, हमको ये बताया था। तो उस समय वो उसी ये में पोजीशन में बैठेगा कि ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन आएगा उसको मदद करने का दिल करेगा, क्योंकि मेरा तरह और एक ऐसे आगे आना है, उसका दिल में ये रहेगा। तो हमेशा हम लोग भी ये चाहता है जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है अच्छा कार्य करे, आने वाला पीढ़ी के लिए अच्छा काम करे, एरिया के लिए अच्छा काम करे। जब आपका घर अच्छा होगा, आपका बस्ती अच्छा होगा, आपका बस्ती अच्छा होगा, आपका जिला अच्छा होगा, आपका जिला अच्छा होगा, आपका स्टेट अच्छा होगा। तो स्टेट अच्छा होने से आपका काउंट्री भी अच्छा होगा। तो एक आदमी से क्या होगा, कभी गलत सोच नहीं रखना है, एक आदमी से भी बहुत चेंज बदलाव ला सकता है। तो इसलिए स्टूडेंट सबको जो समझ सकता है, जो छोटा छोटा भी आया है शायद नहीं समझेगा होगा, फिर भी मैं ये उम्मीद करता हूँ आप सब ये इंटर स्कूल लिटरेरी एंड कल्चरल मीट से आप सबको बहुत सीखने का मिलेगा, बहुत सीखने को मिलेगा। और आने वाले समय में भी ये चीज जारी रहेंगे, ये सोच रखता हूँ मैं। और अभी जो आने वाला स्पीकर होगा वो भी मैंने उसका भी जो भी अच्छा चीज, जो भी अच्छा वक्तव्य देगा, आपको सजेशन देगा, एडवाइस देगा, उसको आप लोग पालन करने के लिए कोशिश कीजिए। आजकल
मल्टी डायमेंशन है स्टूडेंट लोग के लिए, चॉइस बहुत है, लेकिन अपना टैलेंट को आपका टीचर के द्वारा, आपका पेरेंट्स के द्वारा हम 2 बार रिपीट कर रहा है, उधर से आइडेंटिफाई करने दीजिए। आजकल अपना हॉबी को लेके उसी में जाने के लिए करता है, लेकिन टीचर को टीचर्स देखता है, पेरेंट्स देखता है, उसका आपका जो शुभ चिंतक होता है वो आपको सही ढंग से बता पाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ जितना भी इधर बच्चा देता है उधर में भी नए बोलने से भी 2-3% आज ये शिक्षा जैसे भी लेके जाएगा कि आज का प्रोग्राम में हमको ये शिक्षा मिला, आने वाला समय में हम अपना कैरियर कैसे चूज करेगा, आने वाला समय में हमको क्या कार्य करना पड़ेगा, ये उम्मीद रखते हुए और उसके साथ साथ में बासर एरिया स्टूडेंट यूनियन जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है उसको भी ये उन सब से भी ये उम्मीद रखता हूँ आने वाला समय में भी ऐसा अच्छा कार्य कीजिए, एरिया का डेवलपमेंट के लिए कीजिए। ये मेन रिसोर्स पावर जो बच्चा का जितना डेवलपमेंट अच्छा होगा, दिस इज द मेन रिसोर्स पावर। ये चीज को कभी कोई मिटाने नहीं सकता है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग चिल्डिंग मिटा सकता है, लेकिन बच्चा अच्छा पढ़ाई लिखाई करेगा, अच्छा आदमी बनेगा, उसको कोई मिटाने नहीं सकता है। तो इन शब्दों के साथ मैं अपना जो वाणी है इसमें विराम करना चाहूँगा। मैंने बहुत ज़्यादा बोल भी दिया होगा, टाइम भी बहुत लिया है, तो और एक बार फिर तहे दिल से जितना भी यहाँ का प्रोग्राम का आयोजक है उससे तहे दिल से अपना तरफ से थैंक्स एंड धन्यवाद देना चाहूँगा। हमको याद किया कि मेरे प्यारे बच्चों स्टूडेंट के साथ में एक इंटरेक्शन, ऐसे एक संवाद, एक ऐसे मौका देने के लिए, और टीचर्स लोग को भी इधर जब आया था प्रेजेंटेशन, ये जो प्रेजेंटेशन आप लोग को गालों में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जो आपको ये दिया है ना, आप इसको ऐसे मत सोचिए। मेरा शब्द मैं तुम्हें ये कहता हूँ गालों में, आई तुको कर आराम तुको कर, द ब्लेसिंग जो यहाँ का जो ऑर्गेनाइजर लोग हम लोग को ब्लेसिंग दे रहा है, ये मेरा हेल्थ के लिए भी है, मेरा आने वाला समय के लिए भी, जो अच्छा होने के लिए वो लोग हमको ब्लेसिंग दे रहा है। इसको भी अच्छा से ग्रेसफुली एक्सेप्ट करके घर में भी अच्छा से रखना है। ये सब ब्लेसिंग है। नु गलालो मेनरम हिम आई तुको betudangna aram tuko betudangna no grego to aldo be amna doi galla hin tudu kandanga। Thank you so much to the each and every one for silence hearing. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing your words of wisdom, your knowledge and expertise with us and also with the students. It was an honor listening to you, and we would love to listen to you in many other events as well. Thank you so much. Once again, can we have a huge round of applause, everyone? आपको अच्छा लगा सर ने जो बातें बताया, अच्छा लगा? उनके जैसा बात करना है स्टेज में खड़ा होकर, उसके लिए आप लोगों को अभी से ही जब भी कुछ इवेंट होता है वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। सर ने इतना ही आप लोगों को बोला है कि छोटा छोटा जो प्रोग्राम है वहीं से ही आप लोग जब बड़े हो जाएंगे तब आप बड़े प्रोग्राम में परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है? प्रोग्राम इन दिस प्रोग्राम वी हैव कोलैबोरेटेड विद द district hospital. So now we will have this HIV and awareness session. We will now talk about the most, we would say, the most rapidly spreading disease in our state, especially. So, this disease is of very much concern. So now, to speak about this, to give awareness on HIV/AIDS, I would like to invite on the stage our resource person for this program, Bomda Rira ma'am, to please kindly come up on the stage. और सभी बच्चे लोगों को ध्यान से सुनना है और जो नॉलेज है आपको शेयर करना है बाकी बच्चों के साथ भी और फ्रेंड्स फैमिली के साथ। ओके, थैंक यू सो मच। Respected teachers, judges, branded teachers, students, good morning to you all. I am ICTC counselor, District Hospital Basar. थोड़ा पम्पलेट भी लाया हुआ है, थोड़ा सा सिर्फ टॉपिक लिया है, जैसे कि आप लोग को हम बेसिक ऑफ HIV/AIDS का सिर्फ हम बता देगा।
बेसिक्स ऑफ HIV बोलने से व्हाट इज HIV एंड एड्स ना। तो आप लोग कभी सुना है HIV एड्स के बारे में स्टूडेंट? नहीं सुना है। ओके, तो HIV व्हाट इज HIV हम लोग बोलने से ये हम लोग का ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस हम लोग इसको बोलते हैं। वो एक वायरस है जो हम लोग का इम्यूनिटी को मतलब खत्म करता है ना। हम लोग का इम्यूनिटी जो बोलने से हम लोग का बीमारी को लड़ने का ताकत जो देता है ना, वो चीज को हम लोग का खत्म कर देता है। तो ये हम लोग का HIV बोलने से ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ओके, और ये हम लोग का उसमें ये जब HIV हम लोग को HIV हो जाता है तो हम लोग को मतलब दूसरा बीमार को लड़ने का ताकत खत्म हो जाता है हम लोग का बदन में ना। तो और ये फिर हम लोग एड्स का बारे में अगर जब बोलेगा तो HIV और एड्स सब लोग सोचते हैं कि HIV एंड एड्स आर सेम ना, लेकिन एक्चुअली ये HIV एड्स सेम नहीं है। HIV वायरस है और एड्स जो हम लोग का सिंड्रोम है। जैसे कि जब हम लोग का HIV ट्रीटेड नहीं होगा, उसको हम लोग मेडिसिन नहीं खा के देगा, उसमें हम लोग मतलब एड्स हो जाता है। एक जो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम हम लोग इसको बोलता है। तो एड्स ना, तो एड्स तब हो जाता है जब हम लोग HIV को ट्रीटमेंट नहीं करेगा। HIV से जैसे कि HIV होने से हम लोग का इम्यून सिस्टम खत्म होता है और हम लोग का इम्यूनिटी जो क्या से बनता है ज्यादातर WBC ना, व्हाइट ब्लड सेल। हम लोग का व्हाइट ब्लड सेल को जब खत्म कर देगा तो उसमें मतलब हम लोग का एड्स हो जाता है जब ट्रीटमेंट नहीं होगा ना। ट्रीटमेंट जब नहीं लेगा हम लोग HIV पॉजिटिव होने के बाद जब हम ट्रीटमेंट नहीं लेगा तो एड्स हो जाता है। तो इसके लिए मतलब हम लोग ट्रीटमेंट लेना है HIV पॉजिटिव होने से। और हम लोग का ये आपका ये बोलने से हम लोग का HIV और एड्स का साइन एंड सिम्टम ना, हम लोग का साइन एंड सिम्टम जो हम लोग का है एक्चुअली ये मतलब आदमी का ऊपर डिपेंड करता है। उसका मतलब इम्यूनिटी कितना ज्यादा है। उसका अगर इम्यूनिटी ज्यादा है तो मतलब उसको फर्स्ट स्टेज जैसे कि हम लोग का HIV जब हम लोग डिटेक्ट हो चुका है लेकिन उसका कुछ भी मतलब वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं उसको, उसका पास में कुछ भी सिम्टम नहीं होगा, खुद हेल्दी होगा फिर भी मतलब उसका डिटेक्शन हो जाता है कोई का ना। और फिर कोई का इम्यूनिटी बहुत वीक होता है। जैसे कि नेचुरली हम लोग कोई का सब आदमी एक नहीं होता है, उसमें कोई का इम्यूनिटी मतलब बचपन से कम होता है और किसी का ज्यादा होता है ना। तो उसमें इम्यूनिटी कमी होने का वजह से किसी का बहुत जल्दी मतलब HIV इन्फेक्शन का वो सिंड्रोम निकल जाता है ना, सिम्टम निकल जाता है। और हम लोग का HIV एंड एड्स का सिम्टम है फीवर ना, परसिस्टेंट फीवर। फीवर बोलने से भी मतलब ऑनगोइंग, जैसे कि एक महीना जैसे आना जाना बीच बीच में भी रुक के ना आना। और फिर हम लोग का ये हम लोग का बदन जो पूरा रहता है वीकनेस ना, हम लोग का खुद वीक होता है, खाने पीने का दिल नहीं करता है, वीक हो जाता है। और डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया हम लोग उसको बोलते हैं। तो परसिस्टेंट डायरिया ऑनगोइंग प्रोसेस होता है वो भी ना, जैसे कि आना जाना होता है और डायरिया। और फिर उसका हेडेक, परसिस्टेंट हेडेक और शॉर्ट थ्रोट होता है। और स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड ना, हम लोग का लिम्फ नोड कोई में कहीं में गुटी निकल जाता है, मतलब जैसे कुछ पेन नहीं होती थी कहीं में हम लोग का गुटी निकल जाता है ना। और उसके ये मतलब हम लोग का सिम्टम जो एक ही नहीं होते सब बीमार का। तो ऑलमोस्ट जैसे कि ये हम टीबी बीमार का सिम्टम भी होता है, और या फिर जैसे कि ये नॉर्मल हम बीमार है सिर्फ बुखार है भी सोचते हैं उसको हम लोग ना, ये HIV सिम्टम को हम लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन इसके लिए हम लोग HIV टेस्ट करना जरूरी है जब हम लोग मतलब फीवर कफ ये सब लोग होने से ना। और इसमें मतलब हम लोग का कभी कभी STI का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वो भी इन्फेक्शन का सिम्टम भी होता है ना। तो इसके लिए हम लोग का इसमें साइन एंड सिम्टम तो हो गए, ये कॉमन नहीं होता है, एक आदमी का ऊपर डिपेंड करता है ना उसका। और हम लोग का HIV एड्स हम लोग बोलते हैं HIV एड्स क्या से फैलता है हम लोग बोलते हैं ना, मेन रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन हम लोग का ना, मेन रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन होता है थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना।
तो थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स बोलने से हम उसका अंदर में बहुत सारा आ जाता है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर ना, और फिर मतलब सेफ सेक्स प्रैक्टिस नहीं करने का वजह से, और फिर हम लोग रिसीविंग अनसेफ इन्फेक्टेड ब्लड ना, जैसे कि हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, क्योंकि आजकल तो ज्यादातर सब ब्लड बैंक है, मतलब लाइसेंस वाला ब्लड बैंक से हम लोग ब्लड देके मतलब ट्रांसमिशन करना है ना, और बाय यूजिंग अनस्टेरलाइज नीडल, और ये हम लोग का अनस्टेरलाइज नीडल बोलने से हम लोग का इसको शेयर नहीं करना है, हम लोग नीडल जो शेयर करते हैं हम लोग, जैसे कि ज्यादातर इसमें हम लोग का आईवी इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स, आजकल तो इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स तो बहुत ज्यादा है, और वो लोग तो ज्यादातर शेयर करते हैं ना, एक दूसरा को सीरीज शेयर करते हैं, इसके लिए उसको मतलब हम लोग नया सीरीज यूज करना है, कभी भी मतलब ये यूज वाला नहीं लेना है, और स्टेरलाइज वाला नीडल से यूज करना है हम लोग ना। तो लास्ट 4 मेन 3 तो हम बता दिया, और 4 मेन रूट्स जो है वो है वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो उसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलने से हम लोग का वर्टिकल ट्रांसमिशन में आता है फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। अगर माँ या फिर पिताजी में से एक भी इन्फेक्शन हो गया, या माँ इन्फेक्शन हो गया या फिर पिताजी इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें मतलब हम लोग का पेट में ही बच्चा को लग जाता है ना ये इन्फेक्शन, HIV इन्फेक्शन जो, और HIV इन्फेक्टेड माँ इन्फेक्शन नहीं होने से भी, पिताजी इन्फेक्शन होने से भी मतलब बच्चा को लग जाता है डिलीवरी का समय में, ब्रेस्ट फीडिंग समय में, या फिर उसमें भी ना। और ये हम लोग का एक होता है जैसे कि HIV इन्फेक्शन का साथ में, HIV इन्फेक्शन जिसका है वो हम लोग वो लोग का साथ में नहीं रहना है, या फिर HIV दूसरों स्प्रेड हम लोग करते हैं। क्या चीज से हम लोग का HIV जो नहीं फैलता है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि उसका साथ में रहने से, साथ में बैठने से लाभ लेगा, ऐसे नहीं है। हम लोग मतलब हम लोग देख सकता है सिर्फ उसको टच करने से या फिर साथ में रहने से, हम लोग जैसे कि एक ही साथ अभी यहाँ में बैठा हुआ है, ऐसे होने से भी मतलब कोई बात नहीं है, उसको सिर्फ साथ में रहने से, साथ में बैठने से, साथ में टॉयलेट शेयर करने से, फूड शेयर करना, जैसे कि एक ही घर में रहना, उसमें भी हम लोग का मतलब HIV जो स्प्रेड नहीं होता है। तो हम लोग का, और ये मॉस्किटो बाइट एंड इंसेक्ट बाइट ना, तो सोचते हैं कभी कभी कोई का मिसकॉन्सेप्शन होता है कि मतलब मॉस्किटो बाइट से होगा क्या हमको HIV इन्फेक्शन, जैसे कि HIV इन्फेक्टेड पर्सन को मतलब काट दिया मच्छर ने, और फिर हमको आएगा क्या, हमको भी लग जाएगा क्या वो मच्छर हमको काटने से, ऐसे कोई पूछता है। तो उसमें मतलब मॉस्किटो बाइट से भी नहीं होता है, या फिर जो भी इंसेक्ट का बाइट से नहीं होता है, और साथ में रहने से ना, साथ में रहने से थ्रू टच मतलब हाथ मिलाना, ये सब में से भी नहीं लगता है HIV जो। और ये लास्ट हम लोग का ये बेसिक्स ऑफ HIV एड्स बोलने से, फर्स्ट था मेरा व्हाट इज HIV एंड एड्स ना, उसके बाद साइंस एंड सिम्टम, और फिर उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन ना, एंड अभी ये हम लोग प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं HIV एड्स को ना। तो HIV एड्स कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू मतलब हम लोग प्रैक्टिस सेफ सेक्स हम लोग बोलते हैं ना, तो उसमें सेफ सेक्स बोलने से मतलब हम लोग का परसिस्टेंट एंड करेक्ट यूज ऑफ कंडोम्स हम लोग बोलते हैं ना। और ये है कि मतलब हम लोग खुद को टेस्ट करना चाहिए। हम लोग तो कोई भी अभी मतलब ऐसे आदमी को ऐसे दिखने नहीं लगता है कि ये HIV इन्फेक्शन है, इसका पास में होगा बोल के आदमी को देख के हम नहीं बोल सकता है। तो इसके लिए हम लोग अपना स्टेटस को जानना जरूरी है, स्टेटस को जान के मतलब उसको HIV टेस्ट करना है, ठीक है। HIV टेस्ट कर लेना है हम लोग उसके प्रिवेंट करने के लिए। हम लोग मतलब HIV इन्फेक्शन, हम इन्फेक्शन नहीं है बोलते मालूम नहीं होने से तो हम नहीं बोल सकते ना, हम इन्फेक्टेड देना नहीं है बोलते ना, इसके लिए HIV टेस्टिंग जरूरी है। और उसमें हम लोग जैसे कि अगर आप ICU है तो आप सीरिंज शेयर नहीं करना है, क्योंकि आपका सीरिंज जब हम लोग शेयर करेगा तो एक दूसरे को लग जाता है ना, जैसे कि हम लोग सीरिंज शेयर करेगा इंजेक्टिंग करते समय, जब एक का यूज किया वाला एक यूज करेगा, ऐसे होने से तो एक दूसरा को लग जाता है ना। और एक है हम लोग का ये सीरिंज शेयर करना, और एक है जबकि प्रेग्नेंट वर्टिकल ट्रांसमिशन को हम लोग बचाने के लिए मतलब हम लोग जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको जैसे भी मतलब HIV टेस्ट कराना है,
क्योंकि अर्ली डिटेक्शन जो अच्छा होता है ना, जैसे कि जितना जल्दी हम लोग HIV स्टेटस मालूम होगा इतना जल्दी ठीक होता है। तो इसके लिए वही है, आप लोग को HIV पता नहीं है। First of all, today's guest of honor and my elder Achiboko Bashir, who is also the General Secretary of Karpa Welfare Association, and my warm greetings to you. And at the same time, I would like to extend my heartiest gratitude and thankfulness to the President Basu, our weekend Riva, Vice President Mogam Basar, and the organizing chairman of today's literary cultural meet being organized by the Basu, Dagam Bam, Okakokakita, Govind Lendoroke. Or at the same time, my greetings to all the teachers and my beloved students. तो सबसे पहले मैं बासर आओ स्टूडेंट यूनियन का जितना भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, आप सबको तहे दिल से अपना दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बड़े अरसों से मैं चाह रहा था कि एक बार मौका मिले कि हम स्टूडेंट के बीच आके आपसे घुल मिले, आपसे विचार, आपका सोच और स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम समझे, क्योंकि हम भी यहाँ बासर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रोडक्ट है, यहाँ का एलुमनी हूँ। तो जब मैं बासर आता हूँ तब मेरा दिल में ख्याल आता है कि कभी मैं यहाँ बासर स्टूडेंट जितने भी विभिन्न स्कूल है इनका छात्रों से मैं कभी मिले और कभी अपना एक्सपीरियंस आप सबको बताए। तो ये मौका आज हमको बासर आओ स्टूडेंट यूनियन ने दिया, इसके लिए फिर से मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ये जैसे कि सेकेंड लिटरेरी कम कल्चरल मीट आपने ऑर्गेनाइज किया है, ये आगे जाके एक इतिहास बनेंगे स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज का दिन में इस लिटरेरी कंपटीशन में, इस कल्चरल कंपटीशन में जो भी विनर होंगे, आगे जाके आप इस दिन को याद करेंगे। और ये आज इस ऑर्गेनाइजेशन से आप जितना भी स्टूडेंट्स हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। स्टूडेंट को एक अपना दिल में जो सोच है, अपने दिल में जो विचार है, अपने दिल में आइडियाज है, उसको यहाँ आगे ला यहाँ पे सबका सामने एक्सप्रेस करके एक प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं। तो ये जो है स्टूडेंट का दिल और दिमाग में सीढ़ियों पर रहेंगे, और जैसा कि जब आप बड़े होंगे, ऑफिसर बन जाएंगे या कोई बिजनेसमैन बन जाएंगे, उस दिन जब आप दोबारा अपना जिंदगी को रिकलेक्ट करेंगे तो आज का दिन जैसे भी याद करेंगे। तो मैं बासर आओ स्टूडेंट यूनियन को अर्ज करना चाहूँगा, इस टाइप का प्रोग्राम और आगे जाकर करते रहे। और मैं एक सजेशन दूंगा कि आप स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर तीनों को भी मिलकर एक इंटरेक्शन प्रोग्राम करें, क्योंकि स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने में जितना टीचर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी है उतना पेरेंट्स का भी होता है, क्योंकि आपका बच्चा पालन पोषण उसका ब्रोड अपना घर से ही
शुरू होता है। तो घर में डिसिप्लिन, मैनर, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है घर में ही पहले सिखाया जाता है। उसका बाद स्कूल में जाके टीचर से उसको डायरेक्शन देता है। तो इसलिए अगर आप लोग मौका मिले तो पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट तीनों को इस तरह से एक प्लेटफॉर्म देकर इस तरह से उनको क्वालिटी एजुकेशन क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, मैनर क्या चीज होता है और सक्सेस क्या चीज होता है, इसके बारे में आप बताएं। और जैसे कि आज का प्रोग्राम स्टूडेंट से रिलेटेड है और स्टूडेंट को बनाने में सबसे बड़ा हाथ टीचर्स का होता है। और बच्चे ने बताया बिल्डर ऑफ नेशन कौन होता है? स्टूडेंट बोलिए, बिल्डर ऑफ नेशन कौन होता है? इंजीनियर्स। कई लोग सोच रहे होंगे इंजीनियर्स नहीं, एक्चुअली इंजीनियर्स नहीं है, टीचर्स होता है। तो जितना भी टीचर्स आए हैं उन सब के लिए जोड़ा तालियां प्लीज। और स्टूडेंट को मैं और दूसरा सवाल करना चाहूंगा, आप लोग बताएं फादर ऑफ नेशन कौन है? बोलो स्टूडेंट बताओ, फादर ऑफ नेशन कौन है? महात्मा गांधी ना। लेकिन मैं तो कहूंगा फादर ऑफ द नेशन आप हैं। आप फ्यूचर ऑफ नेशन है, लेकिन आगे जाके आप ही फादर बनने वाले हैं। ठीक है? तो इस नेशन का, इस देश का भविष्य जो है आपका हाथ में है और आगे जाके आप ही फादर बनेंगे, आप ही पेरेंट्स बनेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए मन लगा के, ध्यान देके, डिसिप्लिन के साथ आप सब आगे बढ़ना है। और यहाँ पर जितना भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप सबका कोई ना कोई एम होता होगा नहीं? स्टूडेंट्स बताओ, आप लोग क्या बनना चाहते हैं आगे जाके? कोई बोलेंगे IAS, कोई बोलेंगे IPS, कोई बोलेंगे इंजीनियर, कोई बोलेंगे डॉक्टर, कोई बोलेंगे बिजनेसमैन। नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों को बताओ? वो सक्सेस को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत। नहीं, मेहनत नहीं करना आपको। क्यों? बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत नहीं करना आपको। आज का तारीख में, आज का जमाने में मेहनत से नहीं होगा। आज का जमाना वेरी गुड का जमाना नहीं है। आज का जमाना एवरेज का जमाना नहीं है। ठीक है ना? आउटस्टैंडिंग का जमाना। आपको अव्वल नंबर आना है, क्योंकि आप आपस में ही, जितना भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, आप आपस में कंपटीशन कर रहा है। कल को आगे जाके आप इंजीनियर बनने के लिए आप बहुत मेहनत करके पढ़ाई करेंगे, कॉम्पीट करेंगे। लेकिन पढ़ाई कॉम्पीट करना सक्सेस नहीं है। पढ़ाई कॉम्पीट करके इंजीनियर बनना वो सक्सेस है। तो इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे के ऊपर कॉम्पीट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसलिए अगर आप वेरी गुड है तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, आपको आउटस्टैंडिंग बनना पड़ेगा। ठीक है ना? IAS बनने के लिए इंडिया में मान लो 600 पोस्ट का IAS का लगभग हर साल में निकलता है। उसमें आपको पता है कितना स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठते हैं? बताइए बच्चों, कितना स्टूडेंट्स बैठते होंगे? 30 to 40 लाख स्टूडेंट प्रिलिमिनरी एग्जाम देता है। वो 600 पोस्ट के लिए कॉम्पीट कर रहा है। ठीक है ना? तो इसके लिए आपको वेरी गुड बनने से, जस्ट आप उसमें एग्जाम पास होने से नहीं होगा, नंबर 1 आना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेस होंगे। तो इसका रिलेटेड में हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, चार्ल्स डार्विन ऑफ थ्योरी। कोई क्लास 10 12 का स्टूडेंट बैठे कि नहीं बैठे पता नहीं। उसमें ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज का मैं बोल रहा हूँ। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, फिटेस्ट वन विल सर्वाइव। ये तो अभी यहाँ पे अभी क्लास 10 12 का कोई साइंस स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे। अदरवाइज यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पर अपर प्राइमरी लेवल का स्टूडेंट्स है, शायद नहीं जानेंगे। तो इसका मतलब क्या है?
आप लोग चिड़िया देखा है? चिड़िया चिड़िया का घोंसला में 4-5 बच्चा होता है। उसका माँ जो है, जब जो कीड़े मकोड़े जो खिलाते हैं ना, वो जब लेके आते हैं क्या करते हैं? आपस में लड़ता है, क्योंकि एक देता है माँ खाना एक ही कीड़ा लेके आता है, जबकि घोंसला में 5-6 बच्चा होते हैं। और सब क्या करता है? अपना चोंच खोलता है, लेकिन सबको खाना नहीं मिल पाता है, ठीक है ना? तो क्या करता है? घोंसला का अंदर में स्ट्रगल को एग्जिस्टेंस शुरू हो जाता है। आप लोग देखे होंगे, स्पेशली ईगल जो होते हैं ना, ईगल, वो लोग बहुत ही मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन उसका घोंसला में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बच्चा ही सर्वाइव होता है। माँ तो अंडा कितना देता है? 5 अंडा देता है, लेकिन इसमें बचता है 1 और 2। आप लोग देखिएगा, फेसबुक में भी, व्हाट्सएप में मिलेंगे, और करता क्या है? जब माँ घोंसला से बाहर जाता है तो एक दूसरे को फैलता है फल से, ऐसे फैल करके क्या करता है कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो बच जाता है, बाकी सबको घोंसला से फैल के फेंक देता है ना। तो क्या हुआ? कॉम्पिटिशन। तो इसमें क्या हो गया कि वो जो अकेला बचता है, जब जब माँ खाना लेके आता है उसको ही नसीब होता है, तो बाकी सब क्या हो गया? उसको नीचे फेंक दिया, उसका कॉम्पिटिशन खत्म। तो यही चीज जो है, आप लोग शायद छोटा छोटा बच्चे शायद आगे जाके समझेंगे। आप एक दूसरे का से कॉम्पिटिशन कर रहे हो, आपको कल को आगे जाके नौकरी एडवर्टाइजमेंट जो होंगे, लिमिटेड पोस्ट होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स में हजारों स्टूडेंट होंगे। तो इसके लिए आपको मेहनत नहीं करना है, बहुत ज्यादा मेहनत करना है, ठीक है? सिंसियर नहीं होना है, ज्यादा सिंसियर होना है। दिन रात एक करके आप पढ़ाई कीजिए, दिन रात आप एक करके मेहनत कीजिए, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। और जो मेहनत करता है उसको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है? और इसके अलावा आज का जमाने में, जैसे कि मेरा किसी को ने बोला है कि लाइफ इज मल्टी डायमेंशनल। सिर्फ नौकरी करना एक आज का लाइफ में ऑप्शन नहीं है, कई ऑप्शंस खुले हुए हैं, कई अल्टरनेटिव खुले हुए हैं। चाहे स्पोर्ट्स में बोलिए, चाहे कल्चर में बोलिए, चाहे सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में बोलिए, दुनिया भर का एवेन्यूज खुला हुआ है। तो माँ बाप को देखना है कि माँ हमारा बच्चा कौन सा फील्ड में अच्छा है, तो उस फील्ड में आप उसको बराबर दीजिए, उस फील्ड में आप इनकरेज कीजिए। जैसे कि कहते हैं ना, कोई कोई लोग या फेसबुक में बोलता है, सचिन तेंदुलकर को अगर सिंगर बनने के लिए बोलता तो तभी सिंगर बनता था। उसका माँ बाप ने उसका टैलेंट को देखा, उसका कोच ने उसका टैलेंट को देखा कि ये कौन सा फील्ड में अच्छा है, तब जाके उसको क्रिकेट में उसको कोचिंग करा के आगे बढ़ाया, तब जाके सचिन तेंदुलकर दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बना। और लता मंगेशकर को आप क्रिकेटर बनने के लिए बोल देता तो कोई ना बोलता, नहीं बनते ना। उसका गला का जो क्वालिटी है उसको पहचाना, तब जाके उसको आगे जाके उसको सिंगर बना। तो लाइक वाइज पेरेंट्स और टीचर्स, आप सबको मैं दरख्वास्त करता हूँ कि बच्चा का क्वालिटी को पहचानिए, वो कौन सा फील्ड में अच्छा है, तो उसी फील्ड में उसको आगे बढ़ाइए। और जैसे कि मेरा गोपू ने कहा है कि एजुकेशन का बारे में तो हमसे कई ज़्यादा अच्छा टीचर्स बताएंगे, तो इसका बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो मैं थोड़ा सा NSPC के बारे में बोलता हूँ। जैसे कि आप लोग ने कहा कि मैं NSPC से आया हूँ, तो बच्चे लोग और यहाँ टीचर लोग बहुत कम जानते हैं NSPC एग्जैक्टली क्या चीज़ है। NSPC जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स है। ये 1975 में एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही एस्टेब्लिश किया था। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ज़्यादा ऑफिसरगिरी बन के क्या हो जाता है कि उसमें लॉस होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमारी जो है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अगर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और बने रहेगा
तो जो NHPC सक्सेस नहीं हुए, डिपार्टमेंट जिस पर्पज के लिए खुला है वो आगे जाके सक्सेस नहीं हो, तो क्या क्या गवर्नमेंट ने इसको ऑटोनॉमी दे दी, ठीक है ना। तो इसलिए NHPC ऑटोनोमस बॉडी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेस है। और हम लोग जो है, बच्चे सुनो, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रिसिटी से पानी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाता है, पता है आप लोग को? जो जानते हैं हाथ उठा बच्चा लोग, पानी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनते हैं। और ये बासु लोग को भी मैं एक बार करना चाहूँगा, अगर इस टाइप का एक स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी कॉन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी, किसी में कोई अगर यहाँ पे बात सकते कोई प्रोग्राम होता है तो मैं आगे मतलब थोड़ा सा इस बच्चों को बताना चाहूँगा। ये जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है ना, ठीक है। तो वो विषय में हम लोग काम करता है। हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, फिर इसको जो है पावर ग्रिड ऑफ इंडिया आप देखे होंगे, बराबर पावर लेके जाते हैं ना, उसको ट्रांसमिशन उनका है, ठीक है। फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है। फिर इसको कौन कौन स्टेट्स, कौन कौन आदमी कंज्यूमर हो गए, एग्रीमेंट करके वो CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी वो लोग देखते हैं। तो इस विषय में मैंने और जस्ट सिंपल मैं आप लोग को बताया, और मेरा थोड़ा बैकग्राउंड भी बताऊंगा। मैं सागो बस्ती से आया हूँ और आता हूँ, और मैं यहाँ बाजार में 1988 में हायर सेकेंडरी स्कूल में आए थे। इसके बाद 1992 को यहाँ पास आउट करके हम NIT कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एज ए मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ा था। तो जब मैं पढ़ाई को ख़त्म करके आया तो यहाँ देखा कि अरुणाचल में मैकेनिकल इंजीनियर का कोई स्कोप नहीं था। तो इसलिए NHPC का एडवर्टाइजमेंट देखा, उसको देख के मैंने अप्लाई किया था। तो फिर मैं NHPC में एज ए ग्रुप सीनियर मैनेजर यहाँ पे तैनात हूँ। पोस्टेड हूँ फिलहाल मैं कमला HE प्रोजेक्ट बासिमला में पोस्टेड हूँ। और मैं लास्ट में आज का जितना भी यहाँ पे हमारा एड्स के बारे में एक्सपर्ट आए हुए हैं, या फिर आज का जज जो आए हुए हैं, आप सबको भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जितना भी स्टूडेंट्स हैं आप सबको ऑल द बेस्ट करना चाहूँगा। यहाँ पे कंपटीशन में तो जीत हार सभी होता है, लेकिन मेरा बेस्ट वन विन। इसके साथ मैं सबको थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. That was truly informative. Thank you so much once again for your valuable speech and time.